Hello students, welcome back. Today is lecture 10 of the chapter life processes and last video lecture that is lecture 9 में हमने transportation in humans पढ़ना स्टार्ट किया था and उसमें हमने human circulatory system के बारे में पढ़ा था. So let's have a quick recap of what we studied in the last video lecture. So if you remember, circulatory system in humans is of two types, blood vascular system या फिर blood circulatory system, and the next one is lymphatic system, right? And under blood vascular system come blood vessels and heart. So last video lecture में हमने blood के different components पढ़े थे, इसका function पढ़ा था. Components में क्या क्या आते हैं? Plasma, RBCs, WBCs and platelets, right? So हमने last में इसमें functions भी पढ़े थे blood के. So today we will be resuming with blood vessels, that is a part of blood vascular system. ठीक है, so let's get started with blood vessels. So these are the elastic muscular tubes which carry blood. Blood vessels एक ऐसी tubes होती हैं जो कि muscular होती हैं, elastic होती हैं, right? And इनमें ही blood flow करता है. Because of this reason the human circulatory system is also called as closed circulatory system. These blood vessels are of three types: arteries, veins and capillaries. Capillaries या फिर blood capillaries भी हम इनको बोल सकते हैं. So ये जो three types के blood vessels हैं, इसमें हमने arteries and veins के बीच में differences पढ़ेंगे and then we'll take these capillaries as a different topic. So differences बहुत important हैं and school exams में बहुत frequently asked question होता है इनके बारे में. So arteries and veins में क्या क्या differences है देखिए. Arteries में A for arteries and A for away. That means arteries are those blood vessels which carry blood away from the heart. Heart से जो दूर लेके जाएंगी blood को, ऐसी blood vessels को हम arteries कहेंगे, right? And जो towards the heart लेके आएंगी blood, उन vessels को हम blood vessels को हम बोलेंगे veins. So veins क्या होती हैं? These carry blood towards the heart, right? So blood away from the heart, blood towards the heart. ये इनके बीच में difference है. Then next after this is arteries carry oxygenated blood. ठीक है, arteries में oxygenated blood flow करता है, but there is one exception that are pulmonary arteries, right? तो अभी जब हम हार्ट के फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे उसमें आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि arteries में oxygenated blood कैसे फ्लो करता है, इसमें एक्सेप्शन ये क्यों है. ओके, अंडर वेन्स इसका उल्टा है. वेन्स में these carry deoxygenated blood and the exception here are pulmonary veins, right? So इस सेकेंड पॉइंट को आप बहुत जल्दी इसमें समझ पाएंगे कि क्या ये इसका मीनिंग क्या है. नेक्स्ट आफ्टर दिस इज बिकॉज वी से कि आर्टरीज जो हैं दिस कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. सो दैट इज़ द रीज़न कि क्योंकि ब्लड हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बहुत प्रेशर से आर्टरीज में ब्लड आएगा एंड बिकॉज बहुत प्रेशर से जब वो आर्टरीज में ब्लड आएगा सो अगर इसकी जो वॉल्स हैं अगर वो थिक और इलास्टिक नहीं होंगी सो देयर आर चांसेस दैट द आर्टरीज विल गेट रप्चर्ड. So walls of arteries are thick and elastic and the reason क्या है इसका, because the blood from heart comes to arteries with a very high pressure. On the other hand, because veins जो हैं these carry blood towards the heart, तो इसलिए इसकी walls जो हैं उतनी thick नहीं होती हैं. So walls of veins are thin and less elastic. So this is a difference, third very major difference between the arteries and veins. Next after this is वेल्व्स नाम की चीज़ होती हैं. वेल्व्स क्या होते हैं, जैसे हमने न्यूट्रिशन में स्फिंक्टर पढ़ा था. स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? स्फिंक्टर जैसे वो बैक फ्लो को रोकते हैं, जस्ट लाइक दैट वेल्व्स जो हैं ये भी बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करते हैं. सो जो ये वेल्व्स हैं, वेल्व्स आर एब्सेंट इन आर्टरीज. सो यू मे थिंक ऑफ द रीज़न कि वेल्व्स क्यों आर्टरीज में एब्सेंट होती हैं. सो द रीज़न फॉर दिस इज़ कि अभी हमने बात करी कि आर्टरीज में बहुत हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है. सो व्हेन द ब्लड फ्लोज अंडर वेरी हाई प्रेशर सो उसके बैक फ्लो के चांसेस कम हो जाते हैं. सो व्हेन द चांसेस ऑफ द बैक फ्लो ऑफ ब्लड आर लेस सो इसलिए वेल्व्स आर एब्सेंट. दीज आर नॉट रिक्वायर्ड इन द आर्टरीज. ठीक है, तो वेल्व्स आर एब्सेंट वाइल बिकॉज वेन्स में जो प्रेशर है ब्लड प्रेशर होता है दैट इज़ क्वाइट लो. सो दैट इज़ अ रीज़न कि उसके बैक फ्लो होने के चांसेस होते हैं. दैट इज़ अ रीज़न दैट वेल्व्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स. ठीक है, सो यू कैन V फॉर वेन्स एंड V फॉर वेल्व्स. दिस इज हाउ यू कैन रिलेट देम. जैसे अभी बताया था A फॉर आर्टरीज, A फॉर अवे, वैसे V फॉर वेन्स एंड V फॉर वेल्व्स. नेक्स्ट आफ्टर दिस इज कि जो आर्टरीज हैं इसमें क्योंकि
ब्लड बहुत हाई प्रेशर से आता है, जैसे जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बहुत तेज़ से एंट्री होगी ब्लड की आर्टरीज में, बट जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन में है तो उतना ज़्यादा प्रेशर में ब्लड फ्लो नहीं करेगा उस टाइम पे आर्टरीज में ना। सो दैट इज़ द रीज़न कि जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आर्टरीज से ब्लड फ्लो करता है, बट दैट इज़ द फ्लो इज़ जर्की। जर्की मतलब क्या होता है, रुक रुक के, अटक अटक के कोई चीज़ अगर जाती है तो उसको हम जर्की कहते हैं, विद अ जर्क। सो ब्लड फ्लो फास्ट होता है बट जर्की होता है, वाइल ऑन द अदर हैंड वेन्स में जो ब्लड फ्लो है दैट इज़ स्लो एंड स्मूथ। सो ब्लड फ्लो इज़ क्वाइट स्लो एज़ कम्पेयर टू दिस, बहुत स्लो होता है एंड स्मूथ होता है, ऐसे जर्क की तरह नहीं कि रुक रुक के नहीं जाएगा, उसमें बहुत कॉन्स्टेंटली स्मूथली द ब्लड फ्लोज इन द veins। and the last one under this the differences are कि जो arteries होती हैं these are deep seated मतलब ये हमारी बॉडी में काफ़ी अंदर की साइड प्रेजेंट होती हैं। ऑन द अदर हैंड veins these are located superficially। लास्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि जो veins होती हैं, इफ़ यू लुक एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी तो आप देखेंगे उसमें कई जगह हमारी जैसे रिस्ट पे डॉक्टर्स जो हैं वो पल्स रेट चेक करते हैं, तो जो पल्स रेट जिस चीज़ को पकड़ के एंड वो चेक करते हैं वो होती हैं वीन्स, ठीक है। सो दीज आर लोकेटेड सुपरफिशियली मतलब कि ऊपर की साइड से, कई जगह बॉडी में ये ऊपर की साइड से ही आपको दिखाई दे सकती हैं। तो जो भी ब्लूइश कलर की या जो उसको ग्रीन भी बोलते हैं कई लोग, सो ब्लूइश कलर की जो ब्लड वेसल्स आपको स्किन के थ्रू दिखती हैं सो उनको हम बोलते हैं वीन्स। तो ये आपको बाहर से दिख जाती हैं, जबकि जो आर्टरीज हैं बहुत डीप सीटेड होती हैं, आपको बाहर से कभी भी नहीं दिखाई देती हैं, राइट। सो these are the some of the very important differences between the arteries and the veins that you should remember from your school exam point of view। तो स्कूल में तो ज़्यादातर स्कूल्स में ये differences हमेशा आते हैं। So the third kind of blood vessels are capillaries, या इनको हम blood capillaries भी बोलते हैं। आप अभी एक और तरीके के कैपिलरीज पढ़ेंगे दैट आर लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। सो कैपिलरीज, अगर केवल कैपिलरीज वर्ड है सो आप समझ जाइएगा कि ब्लड कैपिलरीज के बारे में लिखा हुआ है, बट अगर लिम्फ कैपिलरीज की बात होगी तो उसमें प्रॉपरली लिम्फ कैपिलरीज वर्ड यूज़ होगा, राइट। सो कैपिलरीज बोलें या ब्लड कैपिलरीज, दीज आर द थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है इनका एज कम्पेयर टू आर्टरीज एंड वेन्स। Capillaries are found in most of the places in the body। So what exactly are these capillaries? These are single cell thick blood vessels which form an extensive network, ठीक है, तो ये single cell thick blood vessels होती हैं। So what do we mean by single cell thick blood vessels? These are like arteries, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो arteries होती हैं, आर्टरीज काफ़ी थिक वॉल्ड होती हैं। थिक वॉल्ड का मतलब जैसे अगर इसकी एक वॉल इफ़ आई ड्रॉ तो इसमें ऐसे बहुत सारे सेल से मिलके एक ये वाली वॉल बनेगी। ऐसी अगर हम वीन्स की बात करें तो वीन्स क्या होंगी, थिन है बट इतनी थिन नहीं है, तो वो आर्टरीज से थोड़ी सी थिन होती हैं। तो इसमें ज़्यादा लेयर्स होती हैं ऐसे सेल की, वेन्स में कम लेयर्स होती हैं। ऑन द अदर हैंड जो कैपिलरीज होती हैं इनकी वॉल्स सिंगल सेल थिक होती हैं, मतलब इसकी एक वॉल में ऐसे केवल एक ही लेयर होगी और उन लेयर्स में एक एक सेल ही प्रेजेंट होंगे ऐसे कॉन्टिन्यूसली। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थिक आर्टरी, थिक वॉल इन आर्टरी का मतलब ऐसे बहुत सारी लेयर्स होंगी सेल की। when we say that the veins are thin as compared to arteries we say, तो ऐसे नहीं कि उसमें सिंगल सेल है, उसमें भी ऐसे लेयर्स होती हैं सेल्स की। वाइल ये जो कैपिलरीज हमने बनाई हैं, कैपिलरीज में ऐसे सिंगल सेल ही दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो इसकी हमने डेफिनेशन लिखी है, दीज आर द सिंगल सेल थिक ब्लड वेसल्स, इसका मतलब ये है, राइट। सो हमने यहाँ पे दीज आर व्हाट आई हैव मेड एन आर्टरी, ये जो बनाया है दिस इज़ द वेन, एंड यहाँ पे जो बनाया है दिस इज़ अ टिपिकल कैपिलरी। सो बेसिकली आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय सिंगल सेल थिक, ठीक है, ऐसे सिंगल सेल की मिलके बनी होती हैं ये, फाइन। सो ये कैपिलरी सिंगल सेल थिक क्यों होती हैं? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट दिस,
कि कैपिलरीज आर सो थिन दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम, ठीक है। तो जैसे आर्टरीज हैं, बहुत सारे सेल से मिलके वो बनती है उसकी एक वॉल, ऐसी दूसरी वॉल में भी ऐसे बहुत सारे सेल्स होंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑर्गन है, तो उस ऑर्गन से कुछ भी सब्सटेंस को यहाँ पे एब्जॉर्ब होना है, तो इन सारे सेल्स को, इन लेयर्स को पेनिट्रेट करके एंड देन वो आर्टरी में आ पाएगा। वाइल कैपिलरीज कहीं पे अगर प्रेजेंट हैं तो केवल ये सिंगल सेल को पेनिट्रेट करते ही वो कैपिलरी में आ जाएगा। ऐसे कैपिलरी से दूसरी साइड अगर जाना है तो इस सिंगल सेल को पेनिट्रेट करके वो दूसरी साइड चला जाएगा, राइट। सो ये जो कैपिलरी होती हैं सिंगल सेल थिक इसलिए होती हैं बिकॉज लेयर अगर बहुत थिन होगी तो उसके थ्रू किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन बहुत इजीली हो सकता है। सो लेट्स से कि जैसे अगर हम यहाँ लंग्स की बात करें, आपने कैपिलरीज से पहले ब्लड कैपिलरीज दो जगह पढ़ी हैं, एक पढ़ी है आपने एल्वेलाई में, राइट, लंग्स में, एंड दूसरा पढ़ा है आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में, विलाई में ये प्रेजेंट होती है ना। सो लेट्स इमेजिन कि यहाँ पे ये लंग्स हैं। सो लंग्स में जो एल्वेलाई होते हैं वहाँ से पेनिट्रेट करके ऑक्सीजन यहाँ आएगा, यहाँ से पेनिट्रेट करके लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, है ना। तो अगर मान लो ये एक्सचेंज कहीं पे करवाना है, कहीं पे एब्जॉर्प्शन करवानी है, तो अगर जो ये वॉल्स अगर थिन नहीं होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि ईजिली वो पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगे एंड देन उनका एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। सो आपको अगर याद होगा हमने पढ़ा था कि एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन दो चीज़ें हमने क्या क्या पढ़ी हैं कि एक तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, दूसरा हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट द थर्ड थिंग दैट यू कैन रिमेंबर एंड राइट एज वेल, जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होना होता है वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं एब्जॉर्प्शन में उनको हमेशा सिंगल सेल थिक होना चाहिए। तो जैसे कैपिलरीज जो हैं ये सिंगल सेल थिक होती हैं, एल्वेलाई जो लंग्स में होती हैं दोज आर ऑल्सो सिंगल सेल थिक, एंड ऐसे ही जब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के बारे में पढ़ा था, विलाई आर ऑल्सो सिंगल सेल थिक, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इधर से तो पेनिट्रेशन हो सकता है दोनों साइड, बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे अगर हम एल्वेलाई की बात करें तो अगर उसकी वॉल्स भी बहुत थिक होंगी तो तब भी वो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो ऑल द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसमें हमेशा वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हमेशा सिंगल सेल थिक होते हैं in order to facilitate the process of absorption. Fine. So you may write these two sentences under capillaries that these are present at the site of absorption. कभी भी site of absorption पे arteries and veins present नहीं होती हैं, हमेशा at the site of absorption capillaries ही present होती हैं, and for the obvious reason. Why? Because these are very thin and these act as junction between arteries and veins, ठीक है। ये arteries और veins का junction होता है, जहाँ पे arteries ख़त्म होती हैं वहाँ पे कैपिलरी स्टार्ट होती हैं एंड देन कैपिलरीज के बाद इट कंटिन्यूज टू द वेन्स, ठीक है। तो कैसे हम इसको बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आर्टरी आ रही है कहीं से, लेट्स से लंग्स में कोई आर्टरी आ रही है, तो यहाँ पे आके वो इट विल गिव राइज टू द कैपिलरीज, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मान लो एल्वेलाई की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कैपिलरीज होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ एंड देन इट विल फॉर्म द वेन। सो आर्टरी एंड वेन के बीच में जो हमेशा प्रेजेंट होता है दोज आर ऑलवेज द कैपिलरीज बिकॉज दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी सब्सटेंस, राइट। सो हमने इसमें यही लिखा है दैट ये जो कैपिलरीज हैं दीज एक्ट एज जंक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स, ठीक है। सो आई एम शोइंग यू द डायग्राम जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में कैपिलरीज का कैसा एक्सटेंसिव नेटवर्क प्रेजेंट होता है। सो यू मे सी हियर कि अभी आपको बताया था कि जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज जब भी किसी ऑर्गन के पास जाती हैं दीज फर्दर डिवाइड टू फॉर्म कैपिलरीज। तो पहले आर्टरीज आर्टेरियोल में डिवाइड होती हैं एंड देन ये रेड पार्ट में आप देख सकते हैं आर्टरी है, तो उसके बाद आर्टेरियोल है एंड उसके बाद ये बहुत फाइन ब्रांचेस में आप देख रहे हैं आर्टरी कितने थिक वॉल्ड है, जबकि ये जो कैपिलरीज हैं बीच में जो ये एकदम एक्सटेंसिव नेटवर्क बना है दिस इज़ व्हाट वी कॉल कैपिलरी नेटवर्क। तो ये बहुत थिन वॉल्स वाली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। तो रेड वाला पार्ट जो है दिस शोज़ कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड
ब्लड है, एंड ये जो ब्लू वाला पार्ट है दिस शोज़ यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिलरीज में एब्जॉर्प्शन होना होता है किसी चीज़ का, वो होता है लंग्स में अगर गई हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कि इसमें कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज होता है या एब्जॉर्प्शन होता है सब्सटेंसेस का, एंड देन कैपिलरी नेटवर्क फिर ब्लू से होते होते फिर ये वेन्स में जाती है। तो पहले ये वेन्यूल बनाती है एंड देन फिर ये वेन्स फॉर्म करती हैं। तो दिस इज़ हाउ कैपिलरीज जो हैं ये एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है जो कि इतना थिन होता है कि वो हमेशा एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेजेंट होगा। तो प्लीज़ रिमेंबर दैट कैपिलरीज आर द जंक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ये आर्टरीज और वेन्स को कभी भी आपस में जो कनेक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे कैपिलरीज। सो कैपिलरीज बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है प्रेजेंट थ्रू आउट आर बॉडी। सो यू में राइट डाउन डिफरेंट टर्म्स दैट वी हैव यूज्ड टिल नाउ, जिनमें कि एक है वेल्व्स, ओके, सम पीपल प्रोनाउंस इट एज वॉल्व्स, सो विच एवर वे यू वांट टू प्रोनाउंस इट। So valves जो होते हैं these are flap like structures which prevent the backflow of blood. I already told you, जैसे sphincters होते हैं digestive system में, ऐसे circulatory system में present होते हैं ये valves जो कि backflow of blood को prevent करते हैं, right? So ये valves कहाँ पे present होते हैं? veins में, but arteries में present नहीं होते हैं, and heart में there are in total 4 valves present, जिनके बारे में जिनमें से 2 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं when we will be studying about the heart. So ये 2 terms हम बहुत frequently use करते हैं इस topic में, which are oxygenated blood and deoxygenated blood. So oxygenated blood, as the name suggests, oxygenated blood वो blood होता है which is rich in oxygen. Oxygen rich blood को हम oxygenated blood कहते हैं। ये oxygenated blood कहाँ से मिलता है? lungs से जब oxygen absorb करता है blood, so that becomes rich in oxygen, तब हम उसको oxygenated blood कहेंगे। but when this blood this oxygenated blood will go to different organs, तो वहाँ पे organs में जाके ऑक्सीजन सेल्स को दे दिया जाता है, ऑर्गन के सेल्स को ऑक्सीजन दे दिया जाता है, वहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, that comes under aerobic respiration. I hope you remember this topic. and जब aerobic respiration होती है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, then the final product is CO2, है ना, CO2 वाटर प्लस एनर्जी उसमें से रिलीज होती है। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बिकॉज ऑफ द ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज देन गिवन टू द ब्लड। सो ब्लड नाउ बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। सो हमने कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से जब एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन ब्लड, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। वाइल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? जब ऑर्गन्स से ब्लड जो निकलेगा दैट विल बी रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। सो प्लीज़ रिमेंबर व्हेनेवर यू सी डिफरेंट डायग्राम्स, तो आप देखेंगे कि हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट किया जाता है विद रेड कलर, वाइल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिप्रेजेंटेड विद ब्लू कलर, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जो ये वटल से कि ऐसा नहीं है कि ब्लड जो है वो ब्लू कलर का होता है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है तो आप स्किन से जब उसको देखते हैं तो वो ब्लू कलर का दिखता है, बट दैट डजंट मीन कि जो ब्लड है वही ब्लू कलर का रहता है। इट इज़ ऑल बिकॉज वी सी इट थ्रू आवर स्किन, तो इस वजह से हमें फिर वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। ओके, सो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में द लास्ट कॉम्पोनेंट हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया है। द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज़ द हार्ट। तो हार्ट जो है ये पंपिंग ऑर्गन होता है, एक पंप की तरह एक्ट करता है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है इसमें। सो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस इन द हार्ट। सो हार्ट को हम पहले देखेंगे कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में आपने क्लासेस अगर आपको याद हो वर्टिब्रेट्स की, देयर आर 6 क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो उसमें सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा होता था, देन फिर पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमिलिया, है ना। तो वो जो 6 के 6 क्लासेस हैं उनमें से अगर हम ये जो मेन ये एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो यू विल सी दैट फिशेस हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट, amphibians have 3 chambered heart, reptiles also have 3 chambered heart, while birds and mammals these have 4 chambered heart। ठीक है, तो अभी इस पे आते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं रिगार्डिंग द हार्ट। देखिए यहाँ पे एक हमने ये बॉक्स बनाया हुआ है, तो इसमें जस्ट इमेजिन के हार्ट है, हार्ट इस शेप का नहीं होता है, ठीक है। जस्ट फॉर योर
ease of understanding, I have made the heart like this. So I have made 4 different chambers here, right? तो 4 chambered heart जो होता है उसमें ये और ये ऊपर के जो 2 हैं जिसको हमने A से रिप्रेजेंट किया है, these are called as the atrium या फिर इसको हम बोलते हैं ऑरिकल। नीचे के 2 जो होते हैं उनको हम बोलते हैं, V here stands for ventricle, ठीक है, एट्रियम ऑरिकल, V for ventricle। नाउ इसमें क्या है, क्योंकि दिस पार्ट, these 2 boxes, these are called as the right half of the heart, तो ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट हाफ है तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो प्लीज़ इनको याद रखिएगा कि 4 चैम्बर हार्ट में दिस इज़ हाउ वी लेबल द डिफरेंट चैम्बर्स। सो व्हेन वी से किसी में अगर 2 चैम्बर हार्ट है, 2 चैम्बर हार्ट का मतलब क्या हुआ कि उसमें ये ऐसा डिवीजन नहीं होगा। सो 2 चैम्बर हार्ट को हम कैसे बनाएंगे कि उसमें एक ऑरिकल होता है और एक उसमें वेंट्रिकल होता है। तो दिस इज हाउ 2 चैम्बर हार्ट। 3 चैम्बर हार्ट की अगर हम बात करें, 3 चैम्बर हार्ट में 2 ऑरिकल्स होते हैं, ऑरिकल्स मतलब एट्रियम, 2 एट्रियम नहीं, 2 एट्रिया बोलेंगे, एट्रियम का प्लूरल इज एट्रिया। सो 2 एट्रिया होते हैं एंड सिंगल उसमें वेंट्रिकल होता है, राइट। सो मिनिमम 2 चैम्बर हार्ट होता है, देन मैक्सिमम जो है वो 4 चैम्बर हार्ट, राइट। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें कैसे कैसे चैम्बर होते हैं हार्ट में। सो लेट्स गेट बैक टू दैट। ओके, सो जस्ट आई टोल्ड यू कि 2 चैम्बर हार्ट मीन्स 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। 3 चैम्बर हार्ट जो कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में है उसमें 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल होते हैं, वाइल इन बर्ड्स एंड मैमल्स 2 एट्रिया एंड 2 उसमें वेंट्रिकल्स होते हैं। So apart from that, you should also remember that these first 3 are the cold-blooded animals, while the last 2 are the warm-blooded animals. Cold-blooded and warm-blooded animals, ये सारी चीज़ें जो अभी यहाँ पे लिखी हैं ये आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं। So आपको ये चीज़ें easily समझ में आ रही होंगी कि क्या है exactly. So cold-blooded and warm-blooded animals भी आपने 9th में पढ़ा था, but if some of you have forgotten, so इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। So warm-blooded animals वो animals होते हैं, animals such as birds and mammals which maintain a constant body temperature regardless of the temperature of the surroundings. That means कि ये वो animals होते हैं birds and mammals जिनमें कि बाहर का टेम्परेचर कितना भी कम ज़्यादा हो जाए, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो दे मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, वाइल जो फर्स्ट 3 हमने पढ़े हैं फिशेज, देन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, उनमें बाहर जैसे जैसे सराउंडिंग्स का टेम्परेचर चेंज होता रहता है उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है, ठीक है। सो बर्ड्स एंड मैमल्स, हम ह्यूमंस जो है वो मैमल्स के अंडर आते हैं। सो बर्ड्स एंड मैमल्स दे आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स विच मीन कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हैं चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो। एंड जो बर्ड एंड मैमल्स होते हैं इनमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट इंटरमिक्स विद ईच अदर, एंड द रीज़न फॉर दिस इज क्योंकि 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है उनमें राइट एंड लेफ्ट हाफ्स ऑफ द हार्ट डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो अभी जब हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, उसमें आप देखेंगे कि राइट एंड लेफ्ट हाफ में जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कभी भी आपस में इंटरमिक्स नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। नाउ जो क्वेश्चन इस पे बेस आता है, अच्छा ये वार्म ब्लडेड बताया है, कोल्ड ब्लडेड इसका ऑपोजिट होता है, उसको इंटेंशनली यहाँ पे नहीं लिखा गया है बिकॉज अभी जो क्वेश्चन आने वाला है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स पे है। सो फॉर योर नॉलेज, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो कि बाहर के टेम्परेचर के वेरी होने के साथ साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी वेरी करते हैं, उनमें कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं हो पाता। So there is one question in your NCERT regarding this, that what is the significance of 4 chambered heart in birds and mammals, ठीक है। So here you may note down this heading that the significance or importance of 4 chambered heart in birds and mammals. So क्या इसकी importance है 4 chambered heart की? So जितना भी अभी तक डिस्कशन हुआ है उसी का ये explanation है इस पैराग्राफ में, that in birds and mammals heart is divided into 4 chambers, right, 2 atria and 2 ventricles, which prevents the intermixing of oxygenated and deoxygenated blood,
एंड क्योंकि इंटरमिक्सिंग नहीं होती, सो क्या होता है कि एज दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स दे रिक्वायर मोर एनर्जी to maintain their body temperature, which can be achieved only when these two blood do not intermix with each other. So this is a very important question under this topic that we studied just now. So इसको याद रख लीजिएगा कि इसमें जो important terms हैं वो क्या हैं. तो 4 chambered heart, then warm blooded animals, and सबसे important that they require more energy to maintain their body temperature. So this is a very important question. So now let's start with the human heart. तो humans में जो heart होता है that is a hollow muscular organ roughly of the size of our clenched fist. clenched fist का मतलब होता है जो हमारी मुट्ठी होती है, ठीक है. अगर आप अपनी मुट्ठी देखें, अपनी मुट्ठी बंद करिए एंड उसको देखेंगे अगर आप, तो जो आपका साइज़ दिख रहा है बंद मुट्ठी का, clenched fist का, वही साइज़ आपके हार्ट का भी है रफली, ठीक है. रफली जो हमारी जो clenched fist होती है उसका जितना साइज़ होता है वही साइज़ हमारे हार्ट का भी होता है, ठीक है. एंड इसका वेट की अगर बात करें तो उसका वेट ऑलमोस्ट 250 ग्राम से लेके एंड 250 ग्राम से एंड 350 ग्राम्स तक वेरी करता है. नाउ कमिंग ऑन टू द लोकेशन, ज़्यादातर अभी तो नहीं बट जब आप छोटे थे तो आपको ये लगता था एज इफ द हार्ट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी, है ना. बट ऐसा नहीं है. हार्ट इज़ नॉट ऑन the left side. This is located between two lungs in the middle of the thoracic cavity. thoracic cavity इसको बोलते हैं chest cavity. तो chest cavity के exactly center में है, in between the two lungs, right. so heart है center में, but ये left side क्यों हमें feel होता है कि left side में है, because the lower portion of the heart is tilted. tilted मतलब थोड़ा टेढ़ा सा है वो left side में. and जो अभी हमने पढ़ा था this one if you remember, ये जो हमने पढ़ा था इसमें ये वाला जो इसकी ये वाली जो वॉल्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं. थिक होने की वजह से जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो बहुत ईज़िली हमें वो फील होता है एज इफ कि जो हार्ट का जो हार्ट बीट जो होती है वो हमें इस पोर्शन से पता चलती है, बिकॉज ये वाली जो वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल, दिस इज़ वेरी थिक. एंड क्योंकि हार्ट टिल्टेड होता है, सो दिस पोर्शन व्हेन इट अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो वो हमें फिर फील होता है एंड वी थिंक एज इफ द हार्ट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, बट लेफ्ट साइड में नहीं होता. इट इज़ एग्जैक्टली ऑन द इन द मिडल ऑफ द thoracic cavity. सो दिस इज हाउ अ टिपिकल ह्यूमन हार्ट लुक्स लाइक. तो इसमें हमने जो 4 चैम्बर्स की बात करी थी उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे दिस इज़ द राइट एट्रियम, दिस इज़ द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है. तो जो 4 चैम्बर्स हैं वो एग्जैक्टली ऐसे होते हैं. ये 1 2 3 4 चैम्बर्स आर देयर. देन आपको मैंने बताया था दैट हार्ट इज़ लोकेटेड एट इन बिटवीन द 2 लंग्स. सो लंग्स, 2 लंग्स के बीच में हार्ट है, बट व्हेन वी अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट तो उसमें हम लंग्स को ऐसे ऊपर बनाएंगे, है ना. तो 2 लंग्स होते हैं बट यहाँ पे ऐसे उसको एक ही जगह लिख लेते हैं लंग्स के बारे में. देन लंग्स के अलावा और भी ऑर्गन्स होते हैं. तो ऑर्गन्स अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो उन ऑर्गन्स को हम यहाँ पे एक जगह लिख लेते हैं ऑर्गन्स, ठीक है. तो हमें पूरे फंक्शनिंग इसकी हम समझ पाएंगे फिर इजीली, राइट. तो आप ऐसे लेबलिंग कर लीजिएगा. ए हियर स्टैंड्स फॉर एट्रिया या फिर ऑरिकल्स एंड वी हियर स्टैंड्स फॉर वेंट्रिकल्स, ठीक है. तो आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो हार्ट के ऊपर ऐसे लंग्स बनाएंगे एंड हार्ट के नीचे ऐसे ऑर्गन्स बनाएंगे, जिससे कि आप ये ईज़िली समझ पाएँ कि एग्जैक्टली अब हम क्या पढ़ने वाले हैं. सो प्लीज़ रिमेंबर, जब भी हार्ट में ब्लड की एंट्री होगी तो ब्लड की एंट्री हार्ट में हमेशा ये जो लेफ़्ट एंड राइट एट्रियम है हमेशा यहीं पे होगी. एंट्री ऑफ द ब्लड ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द एट्रिया. कभी भी वेंट्रिकल में एंट्री नहीं होती, हमेशा या तो लेफ़्ट एट्रियम या फिर राइट एट्रियम में एंट्री होती है, ठीक है. तो इसको देखिए समझिए कि कैसे होता है इसमें एग्जैक्टली. तो ये जो लंग्स हैं, लंग्स से यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड की एंट्री होगी एंड बिकॉज जो टूवर्ड्स द हार्ट लेके आती हैं उन वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, उन वेसल्स को हम बोलते हैं कि वो वेन्स हैं. एंड लंग्स के लिए हमेशा जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो है पल्मनरी. सो हम क्या बोलेंगे, वी विल से दैट pulmonary veins carry blood from lungs to the heart
एंड आपको पता है क्योंकि लंग्स से आ रही हैं तो कैसा ब्लड लेते हुए आ रही होंगी ये, दीज विल बी कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके तो आएंगी, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं नाउ, ठीक है। तो लंग्स से यहाँ पे एंट्री हुई लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। नाउ क्या होता है इस टाइम पे, कुछ टर्म्स हैं जैसे सिस्टोल हो गया, डायस्टोल हो गया, इसको आपको याद रखना है। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। सो व्हाट वी आर सेइंग कि इसमें जब इसको ब्लड यहाँ पे रिसीव करेगा ये लेफ्ट एट्रियम, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा या उस टाइम पे रिलैक्स होगा, थिंक, कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स। तो जब ये रिलैक्स होगा तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो यहाँ पे एंट्री होगी ब्लड की, यहाँ पे एंट्री होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। नाउ इन दोनों लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है, इस वाल्व का नाम होता है, यहाँ पे जो वाल्व होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल बाइकस्पिड या फिर माइट्रल वॉल्व, ठीक है, बाइकस्पिड या फिर माइट्रल वॉल्व इसको कहते हैं। तो यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्लड फिल होगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर इसकी वॉल्स पे लगेगा एंड एज अ रिजल्ट ये वाल्व ओपन हो जाएगा। जैसे ही वाल्व ओपन होगा तो ब्लड की एंट्री फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में होगी, ठीक है, ब्लड की एंट्री लेफ्ट वेंट्रिकल में हुई। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, क्योंकि हार्ट को अपने पास नहीं रखना है ब्लड, हार्ट को क्या करना होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है, तो ये डिसाइड करता है कि किस किस ऑर्गन के पास ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको भेजना है। सो नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल निकलेगी जिसका नाम क्या होगा, जो अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टरी। इस आर्टरी का स्पेशल नेम है, इसको बोलते हैं एओर्टा। तो ये जो एओर्टा है ये कैसा ब्लड लेके जा रही है, दिस इज ऑल्सो कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स से लेके आ रहा था हार्ट, तो हार्ट अब बाकी ऑर्गन्स को कैसा ब्लड देना चाहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अभी हमने पल्मोनरी वेन्स एंड एओर्टा की बात करी है। नाउ यू नो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता ही क्यों है ऑर्गन्स के पास, क्योंकि वहाँ जाके उसको ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना होता है विच वी कॉल एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड नाउ द ब्लड, द ऑर्गन्स विल गिव द कार्बन डाइऑक्साइड टू द ब्लड एंड ये ब्लड अब कैसा कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री करेगा राइट एट्रियम में, इट विल एंटर इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है। अब बिकॉज वो वेसल्स जो कि लेके जाती हैं ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स कहते हैं, और इन वेन्स का स्पेशल नेम है, इन वेन्स को हम बोलते हैं वीना कावा, वीना कावा, ठीक है। और ये कैसा ब्लड लेके जाएंगी बॉडी में, अभी बताया आपको, ये लेके जाएंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी। नाउ द पॉइंट वर्थ नोटिंग हियर इज दैट कि जो ये वीना कावा होती हैं ये दो तरीके की होती हैं, ठीक है। एक होती है सुपीरियर वीना कावा, एक होती है इंफीरियर वीना कावा, okay, first one is the superior vena cava, the next one is the inferior vena cava। एंड इसका मीनिंग क्या है सुपीरियर इन्फीरियर, सुपीरियर वीना कावा वो वेन्स होती हैं जो कि अपर बॉडी पार्ट में होती हैं, ठीक है, जैसे हार्ट के ऊपर जितनी भी होती हैं ऑर्गन्स, जैसे उसमें ब्रेन हो गया, आइज़ हो गई, ईयर्स हो गया, ठीक है, तो वहाँ से जितना भी जो ब्लड लेके आएंगी उनको हम सुपीरियर वीना कावा बोलेंगे। एंड जो लोअर बॉडी पार्ट्स है, लोअर बॉडी पार्ट्स में क्या हो गया, आपके किडनीज हो गए या लंग्स हो गए, लंग्स सॉरी किडनीज हो गए, लेग्स हो गई, ठीक है, स्टमक हो गया, तो वहाँ से जो भी ब्लड को लेके आएगा उसको हम बोलेंगे इंफीरियर वीना कावा। सो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, वीना कावा ही बोलते हैं इनको। सो ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना कावा यहाँ पे लेके आएगी राइट एट्रियम में, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बने हुए हैं, इनमें से एक सुपीरियर है, एक इंफीरियर वीना कावा है। सो इसकी एंट्री होती है राइट एट्रियम में। ना राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहाँ पे आया तो प्रेशर इस पे इतना ज़्यादा लगेगा कि यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट होता है, द वाल्व विच इज़ कॉल्ड एज द ट्राइकस्पिड वाल्व, फिर
ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंट्री होगी। एंड हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया ही क्यों है? बिकॉज इट विल नाउ गिव दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो हम क्या बोलेंगे कि राइट वेंट्रिकल से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाएगा लंग्स को, एंड जो अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेन्स, उसको हम बोलते हैं आर्टरी। एंड बिकॉज इट इज़ गोइंग टू द लंग्स, तो इस आर्टरी का नाम क्या होगा? इस आर्टरी का नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज द पल्मोनरी आर्टरी, विच विल बी कैरिंग द विच काइंड ऑफ अ ब्लड? इट विल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड क्यों लेके जा रहा है? फॉर ऑक्सीजनेशन देयर। ठीक है, सो ये जो पूरी साइकिल बनी है, लंग से यहाँ पे हार्ट में आया, फिर यहाँ से वो ऑर्गन्स में गया। ठीक है, यहाँ से ऑर्गन्स में गया, ऑर्गन से यहाँ पे आया हार्ट में, एंड हार्ट से दोबारा लंग्स में गया। सो दिस होल साइकिल इज व्हाट वी कॉल अ कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू हार्ट। तो हार्ट के थ्रू ये जो पूरी साइकिल बनी है इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं, राइट। सो इसमें प्लीज़ याद रखिएगा, ये पूरा हार्ट में जो भी हमने फंक्शनिंग पढ़ी है इसको अभी हम देखेंगे इसकी क्या कैसे कार्डियक साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज़ नोट डाउन वन मोर थिंग कि ये जो राइट एंड लेफ्ट हाफ है, इसको जो चीज़ डिवाइड करता है द मस्कुलर वॉल, दिस इज़ व्हाट वी कॉल सेप्टम। ठीक है, तो सेप्टम क्या करता है? सेप्टम डिवाइड्स द राइट एंड लेफ्ट हाफ्स ऑफ द हार्ट। एंड आप देख सकते हैं, इफ़ आई आस्क यू नाउ, आपने क्योंकि ये पूरा पढ़ लिया है तो अब आप ये इजीली आंसर कर पाएंगे कि विच हाफ ऑफ द हार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? विच हाफ ऑफ द हार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? सो यू विल वेरी इजली सी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंट्री यहाँ पे हुई थी, फिर वो इस वाले वेंट्रिकल को दिया गया था, यानी कि जो राइट हाफ होता है वो उसमें प्रेजेंट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन द लेफ्ट हाफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, वो बाकी ऑर्गन्स को दिया गया था। सो कैन वी से कि लेफ्ट हाफ ऑफ द हार्ट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो नाउ यू कैन यू सी कि हमने पढ़ा था कि 4 चैम्बर हार्ट में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी आपस में इंटरमिक्स नहीं होते। सो कैन यू सी हियर कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था एंड यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसको सेपरेट करने के लिए क्या चीज़ है यहाँ पे प्रेजेंट? सेप्टम। तो इसने इसको सेपरेट किया है। ये क्योंकि 4 चैम्बर हार्ट जो होता है इसमें कभी भी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। फाइन। सो ये पूरा का पूरा एक कार्डियक साइकिल था। नाउ अब आपने अगर इसको समझ लिया है तो अब जो आगे टेक्स्ट आप देखने वाले हैं, यू विल बी very easily understanding the text that is written now. So the topic name is double circulation in humans. So double circulation का meaning क्या हुआ? It is a type of circulation in which the blood passes twice through the heart in each cardiac cycle. एक पूरी cardiac cycle आपको अभी दिखाई थी क्या थी? So एक cardiac cycle में जब blood 2 बार हार्ट के थ्रू पास होता है, एक ही कार्डियक साइकिल में जब ब्लड 2 बार पास होता है तो ऐसे सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। वाई आर वी कॉलिंग इट डबल सर्कुलेशन? यू कैन वेरी इजली सी, ये पूरी एक साइकिल थी है, लंग से लेके एंड यहाँ से घूम के जब ऊपर तक गया, दैट वाज वन साइकिल। एंड आप इसमें देख रहे हैं इस पूरी साइकिल में हार्ट के थ्रू 2 बार ब्लड गया है। एक बार ब्लड की एंट्री यहाँ पे हुई लेफ्ट एट्रियम में, एंड देन ऑर्गन से फिर यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंट्री यहाँ पे हुई। सो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों में ही एक साइकिल में 2 बार हार्ट के थ्रू ब्लड पास हुआ है। दैट इज़ वाई वी कॉल सच सर्कुलेशन एज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सो दिस डेफिनेशन मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ। सो कार्डियक साइकिल एग्जैक्टली होता क्या है? सो कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ ईच हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में जो इवेंट्स होते हैं उस पूरे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑल दो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, उन सबको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और एक कार्डियक साइकिल में अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, बट बेसिकली आपको याद रखना है 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर सिस्टोल एंड डायस्टोल। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। फाइन। सो द कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग डिफरेंट स्टेप्स। 3 स्टेप्स होते हैं इसके, अगर हम ब्रॉडली इसको क्लासीफाई करें। द फर्स्ट वन इज द जॉइंट डायस्टोल।
जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है, एक साथ डायस्टोल होगा, किसमें, वो होगा एट्रिया में, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। तो कैसे, आपने अभी भी देखा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में थ्रू पल्मोनरी वेन्स उसने एंटर किया है। दिस इज नॉट राइट एट्रियम, दिस मस्ट बी कॉल्ड एज द लेफ्ट एट्रियम, राइट। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स, व्हाइल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम थ्रू वीना कावा, है ना, अभी हमने ये पढ़ा था कि राइट एट्रियम में थ्रू वीना कावा इसकी एंट्री हुई है। सो हमने देखा कि ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ एंटर करते हैं दोनों एट्रिया में, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बोथ द एट्रिया आर रिलैक्स्ड, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दोनों क्योंकि रिलैक्स्ड है इसलिए दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। सो द हेडिंग है जो इस स्टेप की, दैट इज द जॉइंट डायस्टोल में होते हैं ये। द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस इज द एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का मतलब, अब क्योंकि इन दोनों एट्रिया में ब्लड आ चुका है तो अब इसको कॉन्ट्रैक्ट होना है। So as atria get filled with blood, pressure in them rises, causing opening of bicuspid valve, ठीक है, bicuspid valve कौन सा था, ये वाला था bicuspid valve, तो ये वाला bicuspid valve भी ओपन होगा और ये tricuspid valve भी ओपन होगा, ठीक है। So causing opening of bicuspid valve between left atrium and left ventricle and tricuspid valve between right atrium and right ventricle, तो इसको हम क्या बोलेंगे, atrial systole कहेंगे। एट्रिया जो हैं वो एक साथ ही उनमें सिस्टोल होगा। एंड आफ्टर दैट विल बी द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वैल्व इन दोनों के थ्रू वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, सो एज सून एज वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद ब्लड दीज अंडरगो सिस्टोल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा इनमें, कॉजिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू फ्लो थ्रू फ्रॉम आरबी टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू डिफरेंट ऑर्गन्स थ्रू एओर्टा, ठीक है। सो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, दिस इज हाउ ये पूरा का पूरा कार्डिक साइकिल फिर कंप्लीट होता है। तो इसमें ये जो सारे स्टेप्स हैं उनको हमने ब्रॉडली 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सो मैं नोट डाउन फ्यू थिंग्स हियर कि जो वीना कावा के बारे में हमने पढ़ा था, या आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये 2 तरीके की होती हैं, सुपीरियर वीना कावा एंड इन्फीरियर वीना कावा। सुपीरियर क्यों, बिकॉज इट कैरीज ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स, एंड इन्फीरियर वीना कावा क्यों, बिकॉज इट कैरीज ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स। एंड ये जो इन्फीरियर वीना कावा है, दिस इज द लार्जेस्ट वीन इन आवर बॉडी। सो यू मे रिमेंबर दिस कि ये लार्जेस्ट वीन होती है, आपके लिए हाईलाइट कर दिया इसको। सो प्लीज़ रिमेंबर कि वीना कावा को सुपीरियर एंड इन्फीरियर क्यों बोला जाता है। फाइन। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज एओर्टा। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, एंड एओर्टा कौन सी वाली थी, इफ़ यू रिमेंबर, एओर्टा थी ये जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे के सारे ऑर्गन्स को, ये मेन आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी टू डिफरेंट ऑर्गन्स, दिस वन इज व्हाट वी कॉल एओर्टा, जो कि एक तरीके की आर्टरी होती है। सो इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी एंड इट इज़ द मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। तो ये एओर्टा जो मेन आर्टरी है, फिर जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है तो अलग इसकी बहुत सारी ब्रांचेस फिर बनती हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस किस ऑर्गन्स को ब्लड फिर सप्लाई करना है, ठीक है। तो एओर्टा आगे जाके अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज द सेप्टम, ये भी मार्क किया है हमने उसमें हार्ट के डायग्राम में, दैट इट इज़ अ मस्कुलर वॉल दैट सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ द हार्ट। तो जो राइट एंड लेफ्ट हाफ को डिवाइड करता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेप्टम। एंड द लास्ट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर हियर इज दैट जो अभी हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ा है, इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये इसको समझने के लिए अगेन लुक एट द सेम डायग्राम। सो पल्मोनरी, एज आई टोल्ड यू, पल्मोनरी वर्ड जब भी आता है तो समझिए कि वो लंग्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो व्हेनेवर ये जो ऊपर अपर हाफ ऑफ द साइकिल, लंग्स से हार्ट एंड हार्ट से लंग्स, ये वाली जो पूरी अपर हाफ ऑफ द साइकिल है, इसको हम बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो व्हेनेवर देयर इज एक्सचेंज ऑफ ब्लड बिटवीन द लंग्स एंड द हार्ट, तो उस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, दिस part of the cardiac cycle is called as the pulmonary circulation, while ये जो नीचे part है, this one, this whole part is what we call the systemic circulation, yeah. So this is what we call systemic circulation, this is what we call pulmonary circulation. So you may note this down here that double circulation consists of these 2 types of circulations. Pulmonary means between heart and lungs, systemic circulation means between हार्ट एंड ऑर्गन्स, राइट। सो ये हमने
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड वैसो सिस्टम के बारे में पढ़ा है। इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक रहता है, सो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू कि क्योंकि हार्ट का जो ये पूरा हमने साइकिल पढ़ा है, कार्डियक साइकिल, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को टू अंडरस्टैंड। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको कम से कम 2-3 टाइम्स पढ़ें एंड देन वॉच द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो जब आपको एक बार ये कार्डियक साइकिल के सारे इवेंट्स याद हो जाएंगे, सो नेक्स्ट में जो छोटा सा एक टॉपिक बचता है रिगार्डिंग द सेम थिंग, तो वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप कि सेशन आपको समझ में आ गया होगा एंड जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा, प्लीज़ स्टडी इट ट्वाइस और थ्राइस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।